ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشعار میں ذکر خدا۔ گزرے ہوئے صفحات میں ذکر خدا پاک پر مشتمل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کئی اشعار آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں باقاعدہ اس کو عنوان بنا کر مصنف کچھ اور اشعار لکھ رہا ہے۔ مصنف کی یہ کتاب اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان و قلم سے صادر ہونے والے کچھ وہ اشعار نہ لکھے جائیں جن کے ذریعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس کا ذکر کیا، اس کی یاد دلائی ہے، اس کی طرف سے غافل ہونے سے باز رکھا ہے۔ اگرچہ ان کی شاعری کا خاص حصہ شان رسالت میں لکھی ہوئی ان کی نعتیں ہیں، لیکن نعت گوئی کو اپنے کلام کا مقصد بنانے کے باوجود وہ یاد الہی سے غافل نہ تھے۔ جگہ جگہ ان کے کلام میں جس شان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا نام آتا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی نعت گوئی بھی حمد الہی کی ایک خاص قسم ہے۔ مخلوق کی تعریف اس نیت و ارادے سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کمالات دیے ہیں، یہ حقیقت میں حمد الہی ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مبارک ذات میں انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی کاریگری سب سے زیادہ نظر آتی تھی، لہٰذا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھتے رہتے تھے۔ نظم میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یعنی نعت گوئی عربی، فارسی اور اردو شاعری میں ایک خاص قسم مانی جاتی رہی ہے۔ اس سے ان کی زیادہ دلچسپی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے دور میں اردو شاعری شباب پر تھی، لیکن بادشاہوں، نوابوں، جمینداروں کی شان میں قصیدے لکھے جا رہے تھے۔ بادشاہ دہلی بہادر شاہ ظفر کی ہتھیلی پر ایک مٹی کی ڈیلی رکھی ہے تو مرزا غالب نے اس پر پوری غزل لکھ دی اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے اور بھاری انعام پایا۔ نعت گوئی کو اپنا مجاز، مقصد و محور بنانے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ جب مخلوق میں کسی کی تعریف کرنا ہے تو اس کی شان بیان کرو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے اور اس کا محبوب بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حمد الہی کی طرف سے بے خبر تھے یا انہیں اس میں لذت حاصل نہ تھی، وہ تو ان شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کی آنکھیں کھولنا چاہتے تھے جن کی ادبی صلاحیتیں دولت مندوں، امیروں کے درباروں تک محدود تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ رئیسوں اور رئیس جادوں کی شان میں زندگی بھر قصیدے لکھنے والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حمد کم اور نعتیں زیادہ لکھی۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ نہ جانا کہ ان کی نعت گوئی اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے کے لیے تھی، اسی لیے ان کی اکثر نعتوں میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ مصنف یہاں اپنے اس دعوے کے ثبوت کے لیے ان کے کچھ اشعار لکھ رہا ہے۔ کہیں کہیں کچھ معنی اور مطلب بھی بیان کر دیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر اشعار صرف نقل کر دیے گئے ہیں۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، سب میں قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکر فضل حضور آہ یہ لکھا تیرا، کنجیاں دل کے خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ بعد والے 5 اشعار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ، یہ بوجھ اتار آقا، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا، ہے مل کے خدا پہ جس کا قبضہ، میرا ہے وہ کامگار آقا۔ گناہ مغفور، دل روشن، خنک آنکھیں، جگر ٹھنڈے، تالا اللہ ماہ طیبہ، عالم تیری طلعت کا، سکھایا ہے یہ کس گستاخ نے آئینے کویا رب، نظارہ روئے جانا کا بہانہ کر کے حیرت کا، ادھر امت کی حسرت پر ادھر مولا کی رحمت پر، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا،
बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया। अल्लाह अल्लाह बहारे चमनिस्तान अरब, पाक हैं लो से खजा से गुलो रेहान अरब। शौक रोके न रुके, पाँव उठाए न उठे, कैसी मुश्किल में है अल्लाह तमन्नाई दोस्त। जलवा फरमाए रुखे, दिल की स्याही मिट जाए, सुबह हो जाए इलाही शब तारे आरिज। हक ने बख्शा है करम, नजर गदाया हो कबूल, प्यारे एक दिल है वह करते हैं निसारे आरिज। आखिर वाले दोनों अशआर में पहले शेर में वह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए माबूद मेरे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए और मेरे दिल की स्याही मिट जाए और यह जो रात को अंधेरा आरिज है इसकी सुबह हो जाए। दूसरे शेर में वह बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको करम वाला बनाया है, हम फकीरों की नजर कबूल फरमाएं। हमारे पास एक दिल है वह आपके रुखसार पर निसार करते हैं। चाहे खुदा तो पाएंगे इश्क नबी में खुल्द, निकली है नाम ए दिले पुर खून में फाले गुल। हूँ बारे गुनाहों से खजीले दोषे अजीजा, लिल्लाह मेरी नाश करे ए जाने चमन फूल। यानी गुनाहों के बोझ से मेरी लाश भारी है, मैं अपने अजीजों के कंधों से शर्मिंदा हो रहा हूँ। अल्लाह के लिए ए जाने चमन मेरी लाश हल्की कर दो। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दिल गम मुझे गैरे है, खुदा तुझको वह चमकाए, सूरज तेरे खिरमन को बने तेरी किरण फूल। एक नज्म के चंद अशार देखिए, पाठ वो कुछ धार ये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का या रब वास्ता, हो न रसुआ बरसरे बाजार हम। मैं कदा छूटता है लिल्लाह साकिया, अब किस सागर से न हो होशियार हम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक एड़ियों की तारीफ उन्होंने यूं फरमाई, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वह पाकीज़ा गोहरा एड़ियां। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़े मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाजे दवा उठाए क्यों। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। जालों पे जाल पड़ गए लिल्लाह वक्त है, मुश्किल कुशाई आपके नाखून अगर करें। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। साया फगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत कवाली हाथ में। हदीस पाक में है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत मैं अल्लाह ताला की ऐसी हम्द बयान करूंगा कि ऐसी न किसी ने इससे पहले की होगी न बाद में। कोई अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ करे और अल्लाह ताला की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में यह दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जब तेरे रसूल तेरी हम्द का झंडा लहराएं तो वह झूम कर हमारे सर पर आ जाए और उस धूप में हमें उसका साया नसीब हो जाए। सैयदना शाह अबुल हसन अहमद नूरी मियाँ महारवी की मनकबत में से कुछ अशार में भी जिक्र खुदा मुलाहिजा फरमाइए। उनके भले से लाखों गरीबों का है भला, या रब जमाना बाद बकामे अबुल हुसैन। अल्लाह हम भी देख लें शहजादों की बहार, सूंघे गुले मुराद मशामे अबुल हुसैन। कुदरत खुदा की है कि तला तुम कुना उठी, बहरे फना से मौजे दवामे अबुल हुसैन। या रब हमें भी चाशनी उस अपनी याद की, जिससे है शकरी लब कामे अबुल हुसैन। हाँ ताले रजा तेरी अल्लाह रे यावरी, ए बंदा ए जुदूद किरामे अबुल हुसैन। इसमें पांचवा शेर एक खास तौर से पढ़ने के लायक है, जिसमें इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तेरे जिक्र से जिस तरह हमारे शेख अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ के होंठ तर रहती है, अपने जिक्र अपनी याद की यह मिठास, यह लज्जत, यह जायका हमें भी हासिल हो जाए। यानी तेरे जिक्र का जो मजा उन्हें हासिल है हमें भी हासिल हो जाए। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, ऐरे तेरा बुरा खुदा न करे। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से। अपने नफ्स को मुखातब करते हुए यूं कहते हैं,
तूने ही किया खुदा से नादिम, तूने ही किया खजील नबी से, अल्लाह के सामने वह गुम थे, यारों में हो कैसे मुत्तकी से, अल्लाह कुएं में खुद गिरा हूँ, अपनी नालिश करूँ तुझी से, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वही धूम उनकी है, माशा अल्लाह मिट गए आप मिटाने वाले। जरा इन अशार को भी मुलाहिजा फरमाइए, एक में खौफे खुदा और दूसरे में उसके रहम व करम, शान गफ्फारी पर तकिया भरोसा। छुपके लोगों से किए जिसने गुनाह, वह खबरदार है क्या होना है, क्यों रजा कुढ़ते हो हंसते उठो, जब वह गफ्फार है क्या होना है। गुनाह और जुर्म करने के बाद भी वह गुनाहगारों और मुजरिमों को ढाढ़स यूं कहकर बंधाते हैं, मुजदाबादे ए आसियों शाफ़े शहे अबरार है, तहनियत ए मुजरिमों जाते खुदा गफ्फार है। हुजूर अनवर के इख्तियारात का जिक्र फरमाते हुए वह अल्लाह ताला की याद यूं दिलाते हैं, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करें, बारक अल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है। इन अशार में भी जिक्र खुदा का अंदाज देखिए, न हो मायूस आती है सदा गौर गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है। जमी तपती कटेली राह भारी बोझ घायल पाँव, मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, जो तेरी राह में जाए वो जा अल्लाह वाली है। तेरा कद्दे मुबारक गुल बन रहमत की डाली है, उसे बोकर तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। ताला अल्लाह इस्तिगना तेरे दर के गदाओं का, कि उनको आर फर्रे शौकते साहब की रानी है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह के हज और ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर से निकले तो जो कसीदा लिखा, इसका शुरू यहाँ से किया, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मदीने शरीफ में रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिंबर शरीफ के दरमियान का वह टुकड़ा जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की क्यारी फरमाया, उसमें इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को हाजिरी की सआदत मिली तो उन्हें फौरन खुदा ताला की याद आई और उसकी अता पर उसका शुक्र यूं अदा फरमाया, जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नवैद नजातो जफर की है। हाजिर रोज़े पाक से वापसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यह दुआ फरमाते हैं, या रब रज़ा न अहमदे पारी न हो के जाए, यह बारगाह तेरे हबीबे उबर की है, तौफीक दे और आगे न पैदा हो हुए बद, तब्दील कर जो खसलते बद पेश तरी की है। दूसरी बार हाजिरी का मौका मिला तो जबान पर अल्लाह ताला की तकबीर जारी हुई। फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वजह सर की है, उस शाह के रोजा सजदे में सुए हरम झुके, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वो अल्लाह जिक्र हक नहीं पूंजी सकर की है। बारगाह रिसालत में उन्होंने एक तवील सलाम बहुत से अशआर पर मुश्तमिल तहरीर फरमाया, इसमें भी जगह जगह अल्लाह ताला का जिक्र आता है। सिर्फ एक शेर देखिए, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। इस किताब के जखीम व तवील होने का मुसन्निफ को डर न होता तो मुसन्निफ और भी बहुत से अशआर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करता, जिन्हें पढ़कर खुदा की याद आती। कहना ही पड़ेगा कि उनकी नाते मनकबते लिखना, खुदा के महबूब बंदों का जिक्र करना माज़ अल्लाह खुदा को भुलाने के लिए न था, बल्कि भूले हुओं को खुदा की याद दिलाने के लिए था। खुद फरमाते हैं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, है बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। हक यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने महबूब को मुखातब करके फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्र, आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की इस सुन्नत और उसके हुक्म पर अमल फरमाया और नात गोई को अपनी जिंदगी बना लिया। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ़ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन।